Ji, good morning, Imran ul Haq, with the new reading video, and it is test 19 and section 2. You can say a day in the life of a care worker. Let's see the questions. Okay, the question is, you can say, a flow chart. Flow chart is here, and we are going to start with the flow chart. So, instructions, you should follow the instructions, one word only. A day in the life of a care worker. It is an early start to the first client. These are the, you can say, keywords. you may have you may have to help the client get up. आप client को उठाने में मदद करेंगे and dressed, कपड़े पहनाने में मदद करेंगे if they have that makes this challenging. अगर उनको कोई है तो जो उनके लिए मुश्किल का बायस बन रहा है. ठीक है जी. we'll check. Okay, dressed up early, developed disabled peoples with the opportunity to remain independent at home rather than moving into care home. For those, care workers often starts early as their first client of the day may need getting up. You can see getting up. Now you can see early start of the day. You may have to help the client get up and dressed up, and also dressed up, you can say, of bed, and putting on dress up their clothes. They may suffer from a condition. They may suffer, so that makes this challenging. Okay, make this challenging. They can face a problem. They may suffer. So what? Suffer from a condition. They may suffer from a condition. Okay, any restriction, कोई restriction उनको हो सकती है, कोई हद हो सकती है उनकी. ठीक है जी. तो कोई limitations हो सकती हैं, कोई मजबूरी हो सकती है. condition इसको कहते हैं. they suffer from a condition. तो वो किसी कंडीशन, मजबूरी जो है, या कोई लिमिटेशन जो है, उसको वो सफ़र कर सकते हैं. तो वो कहता है कि दैट मे सफ़र from a condition. Okay, so they have a challenge of a condition. So they have a condition. You can see. So write down condition. So write down one condition without s. Okay, the next task. Now these are by cooking breakfast, and it's nice to have some at this time. Okay, the next job is cooking breakfast. You can see here. Okay, where's breakfast? Yes, breakfast. The next task. Okay, the care worker may then help to cook breakfast. You can say cook breakfast for the client, and this is often a good time to enjoy conversation. And you can see the next task may be cooking breakfast, and it's nice to have some conversation at this time. Okay, conversation means guftagu, baatcheet, and you can enjoy that chit chat with them. Okay, you can see, and it's nice to have some conversation. So this is often a good time. It's nice to enjoy to have a conversation. So let's go toward the next one. It may be a good idea to do some housework. Okay, it is good idea to do some housework after this, such as, okay, two activities are mentioned. One is washing up, the other one we are going to find out. Okay, washing up. Let's see, where is washing up. Next, care worker may take the opportunity to do some basic housework. Okay, these are housework for the client. Housework is may take the opportunity to do some basic often something that elderly people or people with disabilities may not be able to do. ये हाउस काम वो हैं जो घर में रहने वाले डिसेबल या बूढ़े लोग नहीं कर सकते. Housework is often something that elderly people or people with disabilities may not be able to do. जी, तो फिर हम कहते हैं जी, इवन समथिंग एज सिंपल एज हूवरिंग. बिल्कुल इतना कि जितना सिंपल हूवरिंग, क्लीनिंग, एक तो एक्टिविटी ये है. द लिविंग रूम कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द client's day. Of course, there may be breakfast dishes. तो मे बी breakfast dishes to do wash. तो एक तो ब्रेकफास्ट डिशेस है, दूसरा क्या है, हूवरिंग तो क्लीनिंग है. तो ब्रेकफास्ट जो उसने दिया हुआ है, हाउसवर्क, वॉशिंग तो उसने दिया हुआ है, तो दूसरा हूवरिंग है.
hoovering means cleaning. ओके जी, challenge hoovering. नेक्स्ट है हमारे पास है यू मे देन विजिट अ सेकंड क्लाइंट एंड हेल्प देम गेट अ, जो विजिट अ सेकंड क्लाइंट एंड हेल्प देम गेट अ लंच रेडी। कौन सा लंच रेडी करना है जी, ठीक है। यू मे विजिट टू अ सेकंड क्लाइंट, लेट्स सी वेयर इज अ सेकंड क्लाइंट। लेटर इन द मॉर्निंग द केयर वर्कर मे मूव ऑन टू अनदर क्लाइंट, ये है सेकंड क्लाइंट, इन ऑर्डर टू हेल्प देम प्रिपेयर द मिड डे मील। लो जी, मिड डे मील, दिस इज अ लंच मील। what kind of midday meal? Care workers try to ensure this is healthy type of meal, healthy type of, okay. So ride them to get a healthy, HEALTHY, हेल्थी, सेहतमंद जो है ना, सेहतमंद, वो आपने जो करना है, रेडी करना है, सेहतमंद उनका लंच रेडी करना है। मिड डे मील तो आपको पता ही है, ठीक है जी। जी, spellings were wrong by mistake, okay, let's start the next. lunch may be followed by some, लंच के बाद भी कुछ आता है, लंच के बाद कुछ करना होता है जी। लंच के बाद क्या आपने करना है? because it is so important to keep clients fit and well, when that is finished the care worker may help the client to carry out the shopping। तो क्या करना है जी बाद में? एक तो जब ये काम हो जाता है तो इसके बाद क्या करना है आप देख लें। हाँ जी, उसके बाद भी देख लें। एक तो काम हो जाता है उसका, तो उसके बाद कोई और एक्टिविटी है वो भी देख लें क्लाइंट की क्या करनी है। तो ये कहते हैं लंच में भी फॉलोड बाय सम, लंच के बाद क्या होता है वो भी उसने बता दिया है कि लंच के बाद क्या होता है, तो वो देख लें, ठीक है जी। द केयर वर्कर में हेल्प द क्लाइंट टू कैरी आउट देयर शॉपिंग, तो उसके बाद आपने शॉपिंग करवानी है जी, ठीक है। बाय गोइंग विद देम टू द लोकल मार्केट, लोकल मार्केट जाके तो आप राइट डाउन शॉपिंग, खरीदारी। Okay, next one is afterwards a third client, then he may move toward the third clients and he will help him with an activity that involves going out of the home। एक तो है कि ये एक्टिविटीज़ है कि घर से बाहर जाना वॉक के लिए, सच एज डूइंग देयर, जैसे कि कुछ करना है। अब व्हाट टू डू ड्यूरिंग द आफ्टरनून द केयर वर्कर मे हेल्प द थर्ड क्लाइंट, यू कैन से ये भी थर्ड क्लाइंट है, विद एन आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी ये बाहर जाता है, विच कुड इन्वॉल्व गोइंग फॉर अ शॉर्ट वॉक, आप शॉर्ट वॉक के लिए जाना है इन द लोकल एरिया, लोकल एरिया गोइंग वॉक आउट है, ठीक है जी, गोइंग आउट है, फॉर अ वॉक सच एज डूइंग देयर, और वहाँ पे क्या करना है, और टेकिंग द लॉन्ड्री, टेकिंग द लॉन्ड्री, और क्या करना है जी, कपड़े धोने हैं आपने, टेकिंग द लॉन्ड्री, तो ये भी है जी सच एज डूइंग द, वहाँ पे भी यही लिखा है टेकिंग द लॉन्ड्री, लेकिन यहाँ पे डूइंग द लॉन्ड्री आ जाएगा, ठीक है जी, LAUNDRY, लॉन्ड्री मीन्स डर्टी क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स, okay। So let's move toward the next part, okay, how to find good balance, how to find good balance, you can say balance between your work and your personal life, okay। Let's start the question. This is also, you can see a summary, okay, notes, you can say complete the sentences below, one word only. Let's see, people who cut down their hours, they work, cut down their hours, they work, gain most feelings better physically and experiencing an increased sense of, okay। People who cut down the hours they work, वो लोग जो अपना काम करते हैं उसमें अगर कुछ टाइम कम देते हैं, टाइम वहाँ पे कम देते हैं, तो फिर क्या होता है, गेन मोस्ट फ्रॉम फीलिंग, वो फिज़िकली, वो फिज़िकली जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनको मिलती हैं, एंड एक्सपीरियंसिंग एन इंक्रीज्ड सेंस, और उनमें एक जो जज्बा है वो बढ़ता हुआ है, वो देखते हैं। और जज्बा है किस चीज़ का, वील सी, जज्बा है किसका, एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज टू to take a serious look at the amount of time you are devoting to work, and set about reducing it, and the people cut down the hours that they gain most from their feelings, from physically, okay। The main benefit most people notice
मोस्ट पीपल, जो ज़्यादातर लोग इसका बेनिफिट हासिल करते हैं, वंस दे स्टॉप वर्किंग टू मच इज एन इम्प्रूवमेंट, तो वो ज़्यादा काम नहीं करते, इससे बेहतरी आती है इन देयर जनरल हेल्थ, उनकी जनरल हेल्थ में। जैसे वो फील बेटर करते हैं, किस में, फिजिकली, वो फिजिकली बेटर, ठीक है जी, हेल्थ में बेटर करते हैं, ये देखें, ठीक है जी, फीलिंग बेटर फिजिकली। तो यहाँ पे वो क्या कहता है जी कि ये नोटिस वन, सॉरी, ये टू मच इज एन इम्प्रूवमेंट, वो फील बेटर करते हैं किस में, जनरल हेल्थ में। जनरल हेल्थ है तो बेटर फिजिकली एंड एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज्ड सेंस ऑफ, और इम्प्रूवमेंट किस में करते हैं जी, एंड वेल बीइंग, और बेटरमेंट में, वेल बीइंग्स। ओके, सो राइट डाउन वेल बीइंग, वेल, वेल बीइंग मीन्स बेहतरी। It is important that those who work at risk, those who work at desk avoid by checking their chair, work surface and screens are in the best. It is important that those who work at desk, जो लोग डेस्क पे काम करते हैं वो बच जाते हैं by checking the chair, चेयर को चेक करके, वर्क सरफेस को चेक करके, स्क्रीन्स को चेक करके कि वो आया कि बेस्ट पोजीशन पे हैं जी। किस चीज़ से बच जाते हैं वो भी हमने अब देखना है। A recent study showed office workers spend approximately 1,700 hours in IELTS in front of computer. 1700 घंटे एक साल में they spend 1,700 in front of computer. Make sure that your workstation is set up, workstation where you work, okay, that is set up, that should be in accurate position so you can comfortable as possible, okay, jitna as much as possible you can, and this will help to minimize, you can see, this will help to minimize work desk avoid, minimize what, okay, checking their chair, work surface, and this is a workstation they should check। and उसने ये लिखा भी है कि ensure your workstation is set up, कि अपना इंश्योर कर लें, मेक श्योर कर लें कि आपका वर्क स्टेशन जहाँ पे आप काम करते हैं, चेयर्स, टेबल, ये वो बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। एंड दिस विल हेल्प टू मिनिमाइज द चांस ऑफ एनी इंजरीज, तो इससे क्या होगा जी, ठीक है जी, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दोज हु वर्क एट डेस्क अवॉइड इंजरीज, तो वो इंजरीज से वो बच जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, देख लें, नेक्स्ट है हमारे पास हैविंग टारगेट्स टू वर्क टूवर्ड्स इज यूजफुल। हैविंग टारगेट्स टू वर्क टूवर्ड्स इज़ यूजफुल बट दे शुड बी, अगर आपके पास टारगेट्स हैं काम करने के लिए तो ये मुफीद हैं, बट दे शुड बी, तो उनको क्या होना चाहिए, वी विल सी एक्टिविटी सच एज सेटिंग गोल्स, ये देखें सेटिंग गोल्स, हैविंग गोल्स, यहाँ पे वो कहता है हैविंग टारगेट्स, टारगेट्स है, हैविंग टारगेट्स है, तो यहाँ पे कहता है सेटिंग गोल्स फॉर बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ इज ग्रेट, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ इज ग्रेट, हैविंग टारगेट्स टू वर्क टूवर्ड्स यूजफुल, ठीक है जी, हैविंग टारगेट्स टू वर्क टूवर्ड्स इज यूजफुल, तो ये देख लें, टू यूजफुल इज ग्रेट, ठीक है जी, टू वर्क प्रोफेशनल एंड इन प्रोफेशनल एंड लाइफ, सेटिंग गोल फॉर बोथ योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ इज ग्रेट, ठीक है जी। हमने देखा है जी वो ग्रेट है। रिमेंबर दो टू मेक दीज रियलिस्टिक एंड कीप इन माइंड मेक दीज गोल्स रियलिस्टिक, ओके, सो यू कैन सी हैविंग टारगेट्स टू वर्क टूवर्ड्स इज यूजफुल बट दे शुड बी, तो गोल्स को होना कैसे चाहिए, रिमेंबर दो, याद रखें अगरचे, टू मेक दीज रियलिस्टिक, इनको रियलिस्टिक बनाएं, हकीकी बनाएं, किन को, गोल्स को, सो राइट डाउन रियलिस्टिक, okay, realistic। Next one is when there are many different tasks to do, the ability to them is vital। जब आपके पास काफ़ी काम है करने के लिए तो जो काबिलियत है इनको करने की या कुछ करने की is vital, वो बड़ी अहम है। तो वे देखते हैं जी, sometimes activities such as sports जिमनास्टिक्स आर नाउन, एक्टिविटीज़ का जिक्र कहाँ है जी, वो हम देखते हैं, मैनी समटाइम्स ईजियर सेड, समटाइम्स इट इज़ ईजियर देन डन, कुछ करना जो कहना है वो करने से आसान होता है, बट इफ़ यू आर जगलिंग न्यूमरस, ये देखें न्यूमरस पीसेज ऑफ वर्क, अगर आप बहुत ज़्यादा
काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टास्क हैं, मैनी डिफरेंट टास्क टू डू है ना, अगर आप कर रहे हैं तो वो भी देख लें। जगलिंग न्यूमरस पीसेज ऑफ वर्क ऑन डेली बेसिस, लर्निंग टू प्रायोरिटाइज इज की। लर्निंग टू प्रायोरिटाइज, ये जानना कि तरजीह किसको देना है वही कामयाबी है। तो यू वो क्या कहता है व्हेन देयर आर मैनी मल्टी डिफरेंट टास्क द एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज देम इज वाइटल। इज वाइटल, जी वो कहता है इज वाइटल, तो यहाँ पे कहता है कि इज की इज ऑल्सो वाइटल। लर्निंग टू प्रायोरिटाइज, ठीक है। एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज तरजीह देनी जो है ना जी, वो है आपकी प्रायोरिटाइज, तरजीह देना। TISE, even you can use, or you can use ZE also, because these both spellings are being used in US and UK. People who give up all treats, वो लोग जो तमाम अपनी entertainments celebration छोड़ देते हैं ना, ठीक है, in their personal time, अपने personal time में may find their, तो वो उनको लगता है जैसे वो कोई चीज़ उनकी कम होती जा रही है। तो देखते हैं जी कम क्या होती जा रही है। इंश्योर यू हैव टाइम टू डू थिंग्स, पहले तो यकीनी बनाए कि आपके पास टाइम होता है काम करने के लिए। मेक यू हैप्पी, वो जो आपको खुश बना दे। इफ़ यू हैव नॉट नथिंग नाइस, अगर आपके पास कुछ भी सही करने के लिए नहीं है, टू लुक फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए, एंड कैन ओनली सी अ लॉन्ग लाइन ऑफ वर्क डेज हैड, और आप देखते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए, दिस कैन ईजिली बिकम ओवरवेलमिंग, तो दिस में बिकम अ बर्डन ऑन यू एंड अल्टीमेटली हिंडर, और क्या होगा अल्टीमेटली, नतीजतन हिंडर योर प्रोडक्टिविटी। हिंडर योर प्रोडक्टिविटी मीन्स यू कैन से डिक्रीजेज, डिक्रीजेज मीन कम होना, हिंडर मीन्स रुकावट बन जाना। तो किस में रुकावट बन रही है जी, प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी में, प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी में, एक्टिविटी में, ठीक है जी। सॉरी, द लास्ट थिंग इज इट इज़ वाइज टू यूज़ द फुल अमाउंट ऑफ अलाउंस एवरी ईयर्स, ठीक है जी, एवरी ईयर्स। ये बड़ी अक्लमंदाना बात है कि हर साल आप वजीफ़ा जो है ना, किसका वजीफ़ा है उसकी मुकम्मल अमाउंट जो है ना वो इंजॉय करें। It's there for a reason and there are no prizes for giving it up, so make sure you take your annual holiday entitlement। ये देखें जी, entitlement है तो allowance है, annual है तो ईयरली है, ये एवरी ईयर्स है तो एनुअल है, अलाउंस है तो इंटाइटलमेंट है, फुल अमाउंट ऑफ किसकी है वो भी देख लें। ये मेक श्योर यू टेक योर एनुअल हॉलीडे इंटाइटलमेंट, यकीनी बना लें कि आपकी सालाना जो छुट्टियों का जो अलाउंस है ना वो आप ज़रूर लें, तो आप ज़रूर यूज़ करें, ठीक है जी, फुल अमाउंट ऑफ हॉलीडे अलाउंस, हॉलीडे, ठीक है जी। In some companies give their employees some holiday allowances, and you can say every years, and he is using annual here, annual it is. So let's move on. Making time to do things with close companions, relatives or, first of all, companion, relatives, or who is the third, is a great way to relax, is a great way to relax. Yes, family, friends, and favorite pets. One is pet, friend, and family. Okay, family means family, companions means friends, relatives mean family, or pets, or pets. You see, pets. Making time to do things with close companions, relatives, pets is a great way to relax. Relax होने के लिए बहुत बड़ा मौका होता है, तो ये भी देख लें। Family, friends, and favorite pets. Family, relatives, friends, companions, and are the ultimate life enhancer. Well, life enhancer, you can enjoy your life. Okay, this was also, you can see, this was our section 2, how to find good balance between your work and your personal life. And the next, the first one we did, it was a day in the life of a care worker. So it was a book 19, it's newly launched, so I thought it better to do it for you as early as possible. So take care, see you in the next video, bye.